slowly feeling broken by restless struggles, failures, or heartbreak. I know how heavy it feels when life hit hurts due to a failure, heartbreak, or ongoing struggles which are never ending, I guess. So, I have been there for months, feeling completely broke, not knowing anything, what to do, where to go, feeling like I am stuck here and I can't get out of this phase. And how do I heal through heartbreak or failures? So, hey, I am Abhinav back here after a long time, and I am gonna talk about how to deal with these issues practically. And I just wanna say, please be patient, everything will be fine. And to heal from these issues is not as difficult as you think, as the scenarios you have created in your head. So, I will provide you three tips or three solutions, trust me, which really works and which worked for me too in my JEE preparation when I was in very low phase, feeling completely broke due to failures, heartbreaks. You know, it feels too heavy to deal with them. So, the first tip and solution I am gonna give you might feel kinda difficult to do or apply cause you are already addicted to it since too long and you don't even know how bad it is affecting your mental health in what ways without even knowing. So that is deactivating all your social media accounts, and most important, first topmost, Instagram, because its algorithm often bombards you with the post or reels, uh, which makes you even feel more worse and worse about your situation in which you are stuck right now or you are struggling right now, because you don't need any extra suffering when you are already suffering in a phase. And you can face such issues such as comparing yourself to others or seeing reminders, flashbacks of the past which you have gone through just right now or since too long, which might come back as a flashback to you and make you suffer as hell and make you feel low than before. And you will never know how rapidly it increases day by day, post by post, whenever you see or like a post or any reel. So what you have to do is delete all your social media accounts and especially Instagram. I would recommend Instagram the topmost, cause I have seen this myself too. When I was suffering a lot, I was in very low phase. The first thing I did was I deactivated my Instagram, and I really got a lot of benefit through deactivating my Instagram account. I got better day by day. Not much better, but I started getting better day by day and started healing. So, from my personal experience, please deactivate your Instagram and you will see the results yourself. And the second tip I wanna give you is write down your overthinking and anxiety. ये सुनने में बहुत कॉमन लग रहा होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग सजेस्ट करते हैं कि जो भी तुम सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, एनजाइटी है, उसको लिख दो. बट बहुत से लोग इसको समझते हैं कि बस बोलना होता है, ये काम करता है नहीं करता है. बट ट्रस्ट मी, दिस रियली वर्क्स, बिकॉज आई हैव ट्राइड इट टू फॉर माई सेल्फ. और मैं अपना एक पेज भी ऐड कर दूंगा जिसमें मैंने अपना मेरे पास अभी वो पड़ा है जहाँ मैंने लिखी थी ओवर थिंकिंग वगैरह. मतलब वैसे तो बहुत पेजेस होते हैं, बट एक मेरे पास बच गया था, बिकॉज उसको मैंने फेंका नहीं था. सो वट यू हैव टू डू इज़, जो भी दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स आते हैं जो तुमको और ज़्यादा लो फेस करवाते हैं, उनको लिख दो एक पेपर पर. मतलब जो भी आ रहा है सब कुछ लिख दो पेपर पर. एंड डोंट चेक योर ग्रामर देयर, अपनी हैंड राइटिंग और ग्रामर, या ये मत देखो कि वो सेंस बना रहा है नहीं बना रहा है. जस्ट जो भी दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स हैं जो लो फील करा रहे हैं उन सबको लिख दो. और ये सच में काम करेगा. लिख दो, फिर उसको लिख के रख लो. जो भी पूरे दिन में थॉट्स आते हैं ना, उसे एक ब्लैंक पेपर पर लिख लो, और जब दिन का एंड हो तो उन सबको एक बार देखो कि मेरे को इन थॉट्स पर वर्क करना है कि ये मुझे आगे से परेशान ना करें, और उस पेज को फाड़ के डस्टबिन में फेंक देना है. ये सुनने में पता नहीं मेरे को कैसा लग रहा होगा, बट ये सच में काम करेगा. इसको ट्राई करना. जो भी ओवर थिंकिंग और एनजाइटी है सब कुछ वहाँ पर लिख दो और दिन के एंड में उसे फेंक दो. डेली ऐसा ही करना है और आप खुद नोटिस करोगे. उसके बाद क्या होगा कि ओवर थिंकिंग का जो इशू है वो कम होता रहेगा डे बाई डे, और खुद में इतना इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा ना एक टाइम बाद कि लगेगा यू आर हीलिंग, लिटरली हीलिंग, और जो कि अभी चाहिए.
और इसके अलावा दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स बट आल्सो गिविंग योर माइंड अ release of your overthinking and unnecessary thoughts which you really need right now. Okay, so let's move to our tip 3. So what is tip 3? So tip 3 is self compassion. So many of you might be wondering what is self compassion and what is the role of self compassion and how it connects with mental health and your healing. So self compassion is basically treating yourself with kindness and understanding yourself during tough times or the times when you are facing so many mental issues and facing unnecessary sufferings. एंड बेसिकली इन ईजी वर्ड्स यू कैन से दैट जैसे कि तुम अपने फ्रेंड को जब फ्रेंड को समझाते हो जब कोई प्रॉब्लम में होता है वो या कोई किसी से सफ़र कर रहा होता है, तो जो तुम दूसरे को बोलते हो उस टाइम वो तुम्हें अपने आप को बोलना है. ये सुनने में थोड़ा अजीब होगा बट दिस टू रियली वर्क्स. और ये चीज़ें वो है जो मेरे लिए प्रैक्टिकली वर्क की हैं, तो काफ़ियों के लिए ये ऑलरेडी करेंगी और इवन जो ओवर थिंकर और एनजाइटी जिसको होती है ना उसके लिए स्पेशली वर्क करेगी. तो इसमें क्या है कि यू नो व्हेन यू आर ब्रोक सो यू मस्ट बी फीलिंग लाइक आई एम अ लूज़र, आई डोंट डिज़र्व दिस और आई एम अनलवेबल एंड आई कांट डू दिस, आई एम नॉट गुड इनफ. तो ये एक सेल्फ विक्टिमाइजेशन मेंटलिटी होती है जो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बहुत गंदी तरह अफेक्ट करती है. तो इसको ओवरकम करने के लिए तुमको अपने आप को ट्रीट करना होगा विद काइंडनेस. और ये ऐसे होगा कि तुम जब अपने आप को तुम ये सब बोलते हो ना तो एक पॉज लो और वहाँ पर अपने आप को बोलो अगर ठीक है मैं फेल हुआ हूँ बट मैं स्टिल लर्न कर रहा हूँ, मैं चीज़ें समझ रहा हूँ, अभी भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, इट्स नॉट द एंड. और इवन इफ़ यू से कि यू आर अनलवेबल, सो अपने आप को समझाना है कि स्टिल यू आर वर्दी ऑफ लव. ओके, सो और इफ़ यू आर मतलब अपने आप की जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन मेंटेलिटी है ना जिसमें तुम अपने आप को खुद ही को ब्लेम किए जा रहे हो, और वो ब्लेम करने से क्या होता है तुम्हारी जो अननेसेसरी सफरिंग्स और नेगेटिविटी है वो तुम्हारे माइंड में ग्रो करती रहती है टाइम बाई टाइम. और इवन वो एक टाइम पर इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसके बाद मे भी तुमको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं. और इवन वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है. इवन तो तुमको उस टाइम शायद साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट करना पड़ता है. तो सेल्फ कंपेशन एक ऐसी चीज़, सेल्फ कंपेशन एक मेनली बेसिक सोल्यूशन है तुम्हारी ओवर थिंकिंग का और एनजाइटी का. यही रियलिटी है. सेल्फ कंपेशन जिसको करना आ गया ना वो ओवर थिंकिंग को पूरा डील कर लेगा अपनी, पूरा नहीं बट काफ़ी हद तक डील कर लेगा, जिससे वो बहुत सारी जो अननेसेसरी सफरिंग है उसको ओवरकम कर देगा. तो सेल्फ कंपेशन यही है, अपने आप को काइंडनेस से ट्रीट करो, अपने आप को समझाओ, अपने आप पर खुद पर रिव्यूड मत हो. ठीक है, खुद पर रिव्यूड मत हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, अपने को सेल्फ ब्लेम करके और मत कोसो. यार एक बात बताओ, तुम ऑलरेडी सफ़र कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद तुम खुद को सेल्फ ब्लेम करते रहोगे कि आई एम नॉट गुड इनफ और आई एम अ लूज़र, आई डोंट डिज़र्व दिस और मैंने इतना किया स्टिल मैं फेल हो गया. तो वो चीज़ तुम्हारे माइंड में ग्रो करती रहेगी टाइम बाई टाइम, और इसको मत होने दो. जितना ये बढ़ेगा उतना तुमको प्रॉब्लम होगी. तो अपने आप को एक काइंडनेस से ट्रीट करो और इससे क्या होगा पता है, तुम्हारी हीलिंग ईजी हो जाएगी. और जो विक्टिमाइजेशन मेंटेलिटी है ये क्या करता है, जो तुम्हारी हीलिंग है उसको बहुत हार्ड कर देगा. तुम आसानी से हील ही नहीं कर पाओगे, तुम बैक टू लेवल 1 आ जाओगे. जहाँ अगर तुम लेवल 10 पर पहुँचे हो तो लेवल 1 पर आ जाओगे. लेवल 1 पर आ गए तो समझ रहे हो ना, जो स्टार्टिंग में तुमको इश्यूज स्टार्ट हुए थे ओवर थिंकिंग एंजाइटी के, वो सब तुम दोबारा से फेस करोगे. इसलिए सेल्फ कंपेशन इज़ द टॉप मोस्ट ऑफ दीज 3 टिप्स आई वुड से. सो ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज दैट. एंड इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो, सो सॉरी उतना अच्छा नहीं हुआ होगा बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्क्रीन. तो आई गेस, बट लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिट वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर कोई आप डेली इश्यूज़ फील कर रहे हो और